आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने डीएमके लीडर से की मुलाकात। मरकज़ की हल्कों की हदबंदी की साजिश को बेनकाब किया जाएगा, वज़ीर आला ने दिया तयख़ुन। वजीर जगदीश रेड्डी को स्पीकर असेंबली से माजरत ख्वाही करनी चाहिए थी। कांग्रेस वजीर के मुतालबे पर बजट सेशन तक जगदीश रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया। गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर के दौरान हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान में नोक-झोंक। पंद्रह मार्च से रियासत में स्कूल निस्फ यौम तक काम करेंगे, हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दूसरे रोज़ गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर मुबाहिस काफ़ी हंगामा खैज रहे, क्योंकि ऐवान में बीआरएस रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मौजू से हट कर हुकूमत पर तनकीद की, जिसको लेकर कांग्रेस अरकान ने एतराज़ किया, जबकि स्पीकर ने भी उन्हें रोका और कहा कि वो सिर्फ गवर्नर के खुतबे पर बात करें। जगदीश रेड्डी ने बारहा मरतबा माइक कट करने और दरमियान में मदाखलत करने पर अपनी बरहमी भी जाहिर की, जिस पर स्पीकर ने एतराज़ करते हुए कहा कि अरकान को बात करने देना या रोकना ये उनका हक़ है, जिस पर जगदीश रेड्डी ने बताया कि उन्हें ऐवान में बात करने का हक़ है और कुछ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने पर वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने जगदीश रेड्डी से मुतालबा किया कि वो स्पीकर से मुआफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। बाज़ कांग्रेस अरकान ने स्पीकर से जगदीश रेड्डी को ऐवान से मुअत्तल करने का मुतालबा किया। ऐवान में अपोजिशन और बरसर इख्तिदार दोनों बेंचों की तरफ से हंगामा रही को देखते हुए स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को उस वक्त 15 मिनट तक के लिए मुलतवी कर दिया था। విషయంలో అనేక సందర్భాల్లో చెప్పుకుంటూ పోయి 10 నిమిషాల తర్వాత ప్రసంగానికి సంబంధించిన అంశం మాట్లాడకపోక మా మంత్రి గారు కానీ మా సభ్యులు కానీ స్పందించడం జరిగింది. ఈరోజు వారు కంపారిజన్ తీసుకొస్తా ఉంటే సంవత్సరంలో మేమేం చేసినాం, 10 సంవత్సరాల్లో ఏం చేయలేకపోయినారో చెప్పింది తప్ప దీంట్లో వాస్తవికంగా వారిని ఏదో కార్నర్ చేయాలనో మమ్మల్ని ఏదో అన్నారని కాదు. దయచేసి నేను గౌరవ జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా, తెలియంది కాదు. గవర్నర్ ప్రసంగానికి సంబంధించి మీరున్నది అనుభవం ఉంది, మీకు మంత్రిగా చేసిండ్రు, ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పండి. మేము సాధారణంగా స్వీకరించడానికి పెద్ద హృదయంతో ఉన్నాం. కానీ ప్రతి అంశాన్ని కూడా ఇది చేయలే అది చేయలే, సంవత్సర కాలంలో ఏం చేయలేస్తారు, ప్రభుత్వం ఏం చేయదలుచుకున్నది, ఏం చేయగల సత్తా ఉన్నది చూపెట్టిన అధ్యక్ష. 14 నెలలలో మేం చేసిన ప్రతి సంక్షేమ కార్యక్రమం విషయంలో వారు 2014 నుంచి 2015 వరకు ఏం చేయలేకపోయినరో ఒక్క సంవత్సర కాలంలో నిలబెట్టి రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేసినాం. మేము ఖచ్చితంగా చెప్పదలుచుకున్నాం అధ్యక్ష. నేను దయచేసి ఈ రోజు కూడా చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఈరోజు వారికి కూడా తెలుసు, చాలా మంది సీనియర్ శాసనసభ్యులు ఉన్నారు, ఏదైతే పార్లమెంటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయో అకార్డింగ్ టు ద కౌల్ అండ్ షెక్దర్ అధ్యక్ష, ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, నో మెంబర్ షుడ్ బి మేక్ any comments against the honorable speaker inside or outside the house, inside or outside the house. So this is an important aspect to be taken into consideration. Any comment made by any member against the honorable speaker are final, is contempt of the house. The decisions taken by the honorable speaker are final and they should be never be questioned by any member inside or outside the house. So the point of consideration is that honorable speaker post మీరు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి నామమాత్రంగానే ఉన్నట్టు మరి వారి వాక్యాల ద్వారా కనబడటం, honorable speaker post is an important post and nobody can question on his decision or on his ruling అధ్యక్ష. మేం చెప్పలే అధ్యక్ష,
ఈరోజు ఈ పవిత్రమైన సభా కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా రూల్స్ ప్రొసీజర్స్ తప్పకుండా పాటించే కార్యక్రమం చేయాలని అనేక సందర్భాలు కోరినప్పటికీ ఇవాళ పొద్దున జరిగిన సంఘటన చాలా దురదృష్టకరం, బాధాకరం. ఈరోజు ఏకవచనంతో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హానరబుల్ స్పీకర్ సిట్టింగ్ హియర్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్, ఇట్స్ అగైన్స్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. We have to uphold the dignity of the house, the dignity of the institution, the dignity of the chair. This is our responsibility. This is our responsibility for all members, Adhyaksha. ఈరోజు మా సభ్యులకు సంబంధించిన మరి ఒక ఆదర్శంగా నిలబడాలి. రేపు రాబోయే కాలంలో కూడా ఏ సభ్యులు ఈ చైర్ విషయంలో కానీ వ్యక్తిగత విషయంలో మిమ్మల్ని దూషించే కార్యక్రమం చేసినా ఈరోజు ఒక ఆదర్శనీయమైన ఒక కార్యాచరణ తీసుకోవాలని మా సభ్యులు కోరారు. ఇప్పుడే డిప్యూటీ సీఎం గారు, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రులు, అదేవిధంగా గౌరవ సభ్యులు మరి ప్రతిపాదన చేయడం జరిగింది. అధ్యక్ష, ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ యువర్ పర్మిషన్ టు మూవ్. I beg to move under rule, sub-rule 1 and 2 of Rule 340 of the Assembly Rules that Sri Guntakandla Jagdish Reddy, member named by the Speaker, may be suspended from the services of the House for remainder of the session. Motion moved. The question is that under sub-rule 1 and Rule 2 of Rule 340 of the Assembly Rules, that Sri Guntakandla Jagdishwar Reddy, member named by the Speaker, be suspended from the services of the House for remainder of the session. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried, and the member named by the Speaker is suspended from the services of the House for remainder of the session. तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास में गवर्नर के खुतबे में जारी मुबाहिस के दौरान रियासती वजीर कोमट वेंकट रेड्डी ने बीआरएस रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी के रिमार्क्स का जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर और वादों पर अमल पैरा है, जबकि बीआरएस ने दलित कायद को वज़ीर आला बनाने का वादा करते हुए दलितों के साथ 10 साल तक धोखाधड़ी की। उन्होंने बताया कि हुकूमत ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र के साथ दीगर 5 गारंटी को भी रूबे अमल ला रही है। बीआरएस अरकान असम्बली जी कमलाकर, सुधीर रेड्डी और विवेकानंद गांधी ने असम्बली के मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की जानिब से साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख़िलाफ़ निचली सतह की ज़बान इस्तेमाल करने की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और उनसे साबिक़ वज़ीर आला से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। बीआरएस अरकान असम्बली ने बताया कि वज़ीर आला आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम है और इस पर पर्दा डालने के लिए वो अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। రోజు నిజంగా ముఖ్యమంత్రి ఉండవన్నది ఆ సభలో మేమందరం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నది తల వంచుకుంటున్నాం. నిజంగా మేము చాలా అవమానం ఫీల్ అవుతున్నాము. నువ్వు ముఖ్యమంత్రి ఉన్న సభలో మేమందరం ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నందుకు నిజంగా మేము అవకారంగా భావిస్తున్నాము. ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి ముందట మేము ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నామని చెప్పేసి చాలా బాధపడుతున్నాం. కాబట్టి బేషరతుకు ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ గారికి, కేసీఆర్ కుటుంబానికి, యావత్ తెలంగాణ సమాజానికి నువ్వు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీద, లేకుంటే తెలంగాణ సమాజం నిన్ను ఇప్పటికీ చిత్కరించుకుంటుందని చెప్పి హెచ్చరించి చెండా ఆడుతూ అంటాడు, పేగులు మెడలు వేసుకుంటా అంటాడు, పండబెట్టి తొక్కుతా అంటాడు, వంగబెట్టి గుద్దుతా అంటాడు, లాగుల తొండలు ఇడిచిపెడతా అంటాడు. ఈరోజు మరి మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారిని మొన్నటి వరకు వీల్ చైర్కి పరిమితం చేసినా మరి నేడు స్ట్రెచర్ మీద పడుకోబెడతా, దాని తర్వాత మార్చురీకి పంపిస్తా అని చెప్పి నీచమైన పదజాలం వాడిన ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి భాషని తీవ్రంగా ఖండించుకుంటూ మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నో సందర్భాల్లో అనేక పోరాటాలు చేసిండ్రు. ఏ పోరాటాల్లో కూడా ఆ పోరాటానికి నాయకత్వం వహించిన నాయకులు ఇటువంటి నీచమైన భాష వాడలేదు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారికి అధికారం ఇచ్చి తెలంగాణ పరిపాలించమని చెప్పేసి ప్రజలు అధికారం అవకాశం ఇస్తే
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में तमिलनाडु की सियासी जमात डीएमके के कायदीन से मुलाकात करते हुए उन्हें तयख़ुन दिया कि वो 22 मार्च को मुनक़्क़िदा मीटिंग में शिरकत करेंगे और जनूबी हिंदुस्तान के हर मसला, चाहे पार्लियामेंट की नशिस्तों में इजाफे का मसला हो या दीगर मसाइल, वो बात करेंगे। बाद अज़ां वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करते हुए तेलंगाना के ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील करने और बकायाजात की अदायगी करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ की एनडीए हुकूमत जनूबी रियासतों के साथ साजिश कर रही है। दिल्ली में डीएमके के लीडर्स के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जनूबी रियासतों की हदबंदी के लिए साजिश रची जा रही है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी का वजूद नहीं है, इसलिए अब हलकों की हदबंदी को लेकर साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन ने इस सिलसिले में एक इजलास भी तलब किया है। पार्टी अरकान कमान की इजाज़त मिलने के बाद इजलास में शिरकत करेंगे। इस मौके पर डीएमके के एमपी कनीमौजी भी मौजूद थीं। I have to take permission from my party. In principle, I have agreed to attend this party, but I have to take permission from my party. Sir, please tell in English about the meeting. Yes, Mr. Tamil Nadu Chief Minister Stalin has sent his delegation to invite me to 22nd meeting in Chennai regarding Government of India and Bharatiya Janata Party is conspiring against the southern states in the name of delimitation. Delimitation is going to limitation for south. This is not delimitation. This is a limitation for south. At any cost, we are not going to accept that limitation. We are paying more tax than North India. We are more entrepreneurs. We are contributing everything for the nation. But Bharatiya Janata Party wants to settle score against South India. Why? Because South Indians are never allowed to grow Bharatiya Janata Party. Kerala, Tamil Nadu, Telangana, even Karnataka also they have defeated. They don't have any representation in Andhra Pradesh. That is why they wanted to settle a score. तेलंगाना हुकूमत ने 15 मार्च से रियासत में तमाम स्कूलों को निफ्स दिन के लिए करने से मुतालिक अहकाम जारी कर दिया है। सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्कूल काम करेंगे। सरकारी, खानगी, इमदादी स्कूल्स पर इसका इतलाक़ रहेगा। मिड डे मील सरकारी स्कूल्स में दोपहर 12:30 बजे फराहम किया जाएगा। जिन स्कूल में एसएससी इम्तहानात का सेंटर रहेगा उसके औकात दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे। हैदराबाद और सैफराबाद पुलिस ने होली त्यौहार के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। सड़कों पर होली खेलने और ज़बरदस्ती किसी पर भी रंग डालने पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। ग्रुप की शक्ल में 2 व्हीलर्स पर गश्त करने पर भी पाबंदी रहेगी। हैदराबाद में 13 मार्च की शाम 6 बजे से 15 मार्च की सुबह 6 बजे तक ये पाबंदी रहेगी, जबकि सैफराबाद में 14 मार्च की सुबह 6 बजे से 15 मार्च की सुबह 6 बजे तक ये पाबंदी रहेगी। पुलिस ने कहा कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माह रमज़ान में हैदराबाद में एक और कत्ल का शर्मनाक वाक़या पेश आया है।
रमज़ान में पुलिस की तरफ से दुकानों और कारोबारी इदारों को रात देर तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। बताया जाता है कि कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद के बाबा नगर सी ब्लॉक में किरानी की दुकान के मालिक 62 साला जाकिर खान ने उनकी दुकान से मुत्तसिल पान शॉप के मालिक से जब दुकान के सामने रखी गई कुर्सियों को लेकर एतराज़ किया तो पान की दुकान वाले और उनके साथियों ने बहस व तकरार की। इस दौरान जाकिर खान को मुबैना तौर पर ज़दोकोब किया गया। उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुँच गई और मरहूम के फर्जंदान से भी तफसीलात हासिल की। मरहूम के फर्जंदान ने बताया कि उनके वालिद तरावी की नमाज अदा करके दुकान पर आए थे और इस दौरान उनके वालिद के साथ बहस व तकरार की गई और ज़दोकोब किया गया और जब वो भी मुकाम वाक़या पहुँचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। उनका कहना था कि रात देर गए तक पान का डब्बा खुला रहता है। कई बार इस सिलसिले में मुकामी अवाम की तरफ से एतराज़ भी किया गया। पुलिस में शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मरहूम के अफराद ख़ानदान ने ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मरहूम के फ़र्जंद इस हमले में जिन मुलज़िमीन के नाम लिए हैं उनमें फ़हीम, अज़ीम, मुकरम के अलावा दूसरे भी शामिल बताए गए हैं। माह रमज़ान में दुकानात को देर तक खुली रखने का मकसद आवाम को सहूलत पहुँचाना है, लेकिन जिस तरह से शहर के बाज़ इलाक़ों में पान के डब्बों के अलावा दूसरी दुकानात पर जो हुजूम जमा हो रहा है, इस पर पुलिस को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बैठे बोला तो वो मामले में लड़ाई शुरू हो गया। वो ढकल दिए, उनके बच्चे आए तो बच्चों को भी मारे। बच्चे कहाँ है? बच्चे पूरा खून लगे हुआ है, उन्होंने गिर गए। डब्बा अगर चल गया तो बर्खास्त समझो, दिखते रहे पूरे बर्खास्त होते डब्बे पे। और पोस्टमार्टम को जाना पड़ता। आपको भी देते काफी लोगों से देख लो। बोलो जी, बड़े लोग बोलो, काटा दो, हम बोलो तो अच्छा। वो कुछ भी नहीं, फिट एंड फाइन थे भाई, फिट थे। उसके प्राइमरी इंफॉर्मेशन साहब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर उतने कंप्लेंट आए तो आप लोग एक्शन करके नहीं लिया अब तक। समझ ऑलरेडी कंप्लेंट है, बल्कि आप ही बोले इसके ऊपर। 20 का ऊपर कंप्लेंट नहीं, मेरा नहीं, पहले ऑलरेडी उसके ऊपर कंप्लेंट अपन लेते हैं। इधर का है हाफिज, बच्चों को मार रहे हैं। फिर उन लोगों का काम क्या है? गांजा यूज करना, लोगों पे जुल्म करना। बेटा है हमारा बोलने का मतलब ये है कि पहले जिससे अगर कंप्लेंट आए ये करते हादसा नहीं होता था। कहाँ है जुबैर? आज शाम 12 बजे को हफीज़ बाबा नगर सी ब्लॉक ऑल अरेबिया पान शॉप के सामने पान शॉप वाला अजीम, फ़हीम और उसका दोस्त लोग 2-3 कुर्सी के ऊपर शॉप के सामने बैठे हुए। वो टाइम में बाजू किराना शॉप वाला जाकिर खान बोल के 62 ईयर्स का आदमी आके इधर कई को बैठे, कई को डिस्टर्ब कर रहा बिजनेस हमारा को बोल के पूछे। जब वो सिलसिले में थोड़ा लफड़ा हुआ, उसको ढकले के एक पचकट भी मारे एक लोग। ऑलरेडी जाकिर खान को थोड़ा 2016 में एक ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ, उसकी वजह से शायद वो नीचे गिर गया, अनकॉन्शियस हुआ। वो टाइम में जाकिर खान का दो बेटे हैं, वो जीशान और जुबैर बोल के, वो 2 लोग भाग के आके पूछने के लिए आए बोले, तो वो लोगों को भी हाथों से मारे। और ये अनकॉन्शियस हुआ, सो जाकिर खान को देख के ये अजीम, फ़हीम और उनका जाकिर खान का बेटे, वो लोग पूरा मिलके अपोलो DRDO हॉस्पिटल को ले गए। तो डॉक्टर्स चेक करके उन्हें ऑलरेडी मर गया बोल के बोले। इसके सिलसिले में हमारा को एक कंप्लेंट दे रहा, वो कंप्लेंट के ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे वालिद साहब है जाकिर खान साहब, यहाँ तरावी पढ़ के आए थे मस्जिद को जाके, दुकान खोले, किराने की दुकान है वालिद साहब की। हमारे दुकान खोल के बैठे, शाम में क्या है यहाँ पर कोने में पान डब्बा चलता, तो
बोलना होटल भी चला रहे हैं चाय वगैरह डाल के, तो पूरे कुर्सियाँ हमारी दुकान के सामने डाल दिए। तो वालिद साहब क्या बोले कहते कुर्सियाँ हटाओ बोल के बोले, तो उन्हें बच्चा आके क्या करा कहते कहीं को हटाए हमारे कुर्सियाँ ये वो बोल के हमारे वालिद साहब को मार दिया, धनाधन मार दिया पूरा। वालिद साहब को हार्ट पेशेंट थे, वालिद साहब हार्ट पे मारा ही क्या है कि डॉक्टर बोला तो हमारे बोला हार्ट आया उनको बोल के बोला, उन्हें मारने की वजह से उसके बाद से फिर हमला गए हमारे घर पे आके बच्चे मारे खट्टा। वालिद साहब को अरे आपको मार रहे बोलते, हम भाग के आए तक वालिद साहब कुर्सी पे पड़े हुए थे। हम वहाँ गए जाके देखे तो हम कई को मारे ये करे बोलते उल्टा हम लोग को भी मारा, पूरा खून हमारे भाई का मुंह फोड़ दिया मार के, पूरा इधर खून। अजीम फुरशान है और फ़हीम है और मुकरम है और कितने की 15-20 बच्चे थे पूरे डब्बे पे जितने ही बढ़ते, और 24 घंटे खुला रह रहा। पांडाबा भी ख़त्म होना, सी ब्लॉक बाबानगर की पहले भी 3-4 केसा है कहते उसको पेंडिंग डाल के रखे हुए, हमारे इंसाफ होना और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना उसकी पूरी पुलिस से हमारे को मीडिया से और पूरों से अपील है। दर्द माना पूरे अपना हमारा पूरा साथ दीजिए। कहीं को बोलते अगली बार किसी का हादसा नहीं होना, हमारे वालिद साहब के साथ हुआ किसी कोई भी होता, एक मोमिन को मारना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। रन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में ऑटो ड्राइवर की मौत की भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक गंगानगर नाले के साकिन कौकब अली का इतवार को एक बाइक सवार के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। पीर को कौकब अली की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो खानगी हॉस्पिटल से रुजू हुए थे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर अरकान मुखन्ना रियाजुल हसन अफंदी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने रैन बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस अहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की तहकीकात कराई जाए। अगर झगड़े की वजह से कौकब अली मुतासिर हुए तो जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रैन बाजार पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। जैसे ही इत्तला मिली नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास तौर से कहा मुझे और रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब और अलमदार वाले जाई साहब कारपोरेटर और जनाब वासिफुद्दीन साहब जाइए जाके क्या मैटर है उसकी इंक्वायरी करिए। हमने इंक्वायरी किया तो पता चला कि इतवार के दिन क्लासिक आइसक्रीम के पास में जो हादिसा पेश आया जिसका नाम है कौकब अली, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर थे, उनके ऑटो से कोई बाइक वाले का बाजू दब गया, जिसमें दोनों में आपस में बहस और तकरार हुई और आपस में झगड़ा हुआ। उसके बाद में दोनों रफा दफा कर लेके अपने अपने मकान चले गए। दूसरे दिन कौकब अली साहब की कुछ तबीयत नासाज हुई तो उन्होंने जाके असला हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद वहाँ पे मायने इंस्पेक्शन चल रहा था। आज पता चला कि मगरिब के असर और मगरिब के बीच में कौकब अली का इंतकाल हो गया। उनके फैमिली मेम्बर्स का कहना ये है कि भाई उनकी तबीयत बराबर नहीं रहती थी, जिसके तरफ से शायद ये वाक़या पेश आया है। मगर हमारा काम है, हम पुलिस को यही कहें कि भाई आप प्रॉपर इंक्वायरी करना बेइंतहा ज़रूरी है, चाहे कोई भी रहने दो, जान तो जान है, किसी की भी रहने दो। और कौकब अली के 3 मासूम बच्चे हैं और उसके लिए हमने खुद इमीडिएट न सिर्फ रैन बाजार पुलिस स्टेशन आया, इंस्पेक्टर को साथ लेकर कौकब साहब के घर गए। जाने के बाद हमने पूरी तफसीलात हासिल किए। उनके वालिद, 2 भाई, बहन भाई और बस्ती के ज़िम्मेदारों को बुला कर इंस्पेक्टर साहब से बात करवाए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसा भी रहेगा कराएंगे। अगर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है या उसके मार से अगर कुछ होगा तो उसके ऊपर बराबर पूरी कानूनी कार्रवाई भी होंगी और जैसा भी होगा उसके ऊपर केस बुक कराएंगे और आगे की कार्रवाई के लिए उनके घर वालों से मशवरा करके जैसा करने का है काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। मैं यही कहना चाहता हूँ, रमज़ान का मुबारक महीना है, आपको और हमको रोज़े में रहते थोड़ा पेशेंस से रहना बेइंतहा ज़रूरी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीज़न में वाक़े ऑफिसर्स मेज़ फंक्शन हॉल में गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों में रमज़ान राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद मिन्हाजुद्दीन के अलावा इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में बॉयज हॉस्टल की लिफ्ट की जाली में फंसकर 4 साला बच्चा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर कॉलोनी में वाक़े मुश्तबा हॉस्टल की लिफ्ट में काम करने वाले वॉचमैन का बेटा सुरेंदर लिफ्ट की जाली में फंस गया और मुकाम वाक़े पर ही इसकी मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। अफराद ख़ानदान ज़ारो ख़तार रोते हुए देखे गए। अपार्टमेंट के इंतज़ामिया पर भी मुबैना लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया गया है। పై సెకండ్ ఫ్లోర్ నుంచి కిందకి దిగుతుందో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి పైకి పోతుందో తెలియదు కానీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి మధ్యలో ఒక హాఫ్ ఫీట్ మధ్యలో స్లాబ్లో ఇరుక్కుంది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి మధ్యలో ఫస్ట్ गाड़ी है కిందికి ఏం రాలేదు సార్, మొత్తం పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కానీ ఉంది. मलकपेट के मुसहरमबाग ईस्ट प्रशांत नगर में सारिखों ने एक साथ 4 अपार्टमेंट्स में से जूते और चप्पलों का सरखा कर लिया है। बताया जाता है कि मुतासरीन में पुलिस इंस्पेक्टर और एक खातून सब इंस्पेक्टर के जूते और चप्पल भी शामिल हैं। जुमेरात की सुबह सुबह अपार्टमेंट के मकीन नींद से बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर स्टैंड में रखे हुए जूते और चप्पल गायब हैं। एक साथ 4 अपार्टमेंट्स में जूते चप्पलों के सरखे से मकीनों में भी तशवीश देखी गई। पुलिस को भी तलब कर लिया गया है। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फेडरेटरी फोरम IJFF के SA चैप्टर की जानिब से साल 2025 की डायरी रिलीज़ इवेंट का अहतमाम किया गया। इस तकरीब की सदरत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ प्रेसिडेंट चैप्टर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर शौकत परवेज़ प्रिंसिपल अल यास्मीन इंटरनेशनल स्कूल ने शिरकत की और खिताब भी किया। मेहमानान एजाज़ी के तौर पर डॉक्टर इदरीस सलीम गौर, मेडिकल कंसल्टेंट शिफा मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, मोहम्मद अब्दुल जब्बार प्रेसिडेंट GIF और मोहम्मद ग़ुलाम ख़ान प्रेसिडेंट राजस्थानी कम्युनिटी ने शिरकत की और ख़िताब किया। मेज़बान दरबार रेस्टोरेंट में मुनक़िदा इस तक़रीब की कार्रवाई मंसूर क़ासमी कोऑर्डिनेटर की खुरान से हुई। तक़रीब से ख़िताब करने वालों में मेहमानों के अलावा रियास की मौजूद शख्सियात बशमूल ज़हीर बेग, सरपरस्त अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी शामिल थे, जिन्होंने फोरम से अपने मुकम्मल ताउन का तयख़ुन दिया।
इस तकरीब में IJFF के ज़िम्मेदारान मोहम्मद सैफुद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल हसन आमिर, ट्रेज़र बासित अबू मुआज़, जॉइंट सेक्रेटरी फ़ारूक रज़ा, कोऑर्डिनेटर्स के अलावा दीगर ने शिरकत की। अब्दुल नईम ख़य्यूम कोऑर्डिनेटर ने तकरीब की कार्रवाई चलाई। तकरीब में AIUS के अरकान के अलावा दीगर कई शख्सियतें डॉक्टर SN मसूद, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुबीन व दीगर ने भी शिरकत को यकीनी बनाया। इसके अलावा मेहमानों के हाथों डायरी की रस्म रुनुमाई भी हुई, जबकि उन्हें तहनीत भी पेश की गई। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने DMK लीडर से की मुलाकात। मरकज़ की हल्कों की हदबंदी की साजिश को बेनकाब किया जाएगा, वज़ीर आला ने दिया तयख़ुन। वज़ीर जगदीश रेड्डी को स्पीकर असेंबली से माज़रत ख़्वाही करनी चाहिए थी। कांग्रेस वज़ीर के मुतालबे पर बजट सेशन तक जगदीश रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया। गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर के दौरान हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान में नोक-झोंक। पंद्रह मार्च से रियासत में स्कूल्स निस्फ यौम तक काम करेंगे, हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।